Welcome students. In this video, I am going to teach you History of Class 6. The name of the chapter is The First Cities, that is your fourth chapter. Okay students, in this chapter, The First Cities, you will understand the transition from pastoral phase to urban phase, understand the meaning of civilization and urbanization, and learn about the distinct features of Harappan towns and cities. Okay, and also find out the extent and spread of Harappan culture, and also learn about the way of life in the Harappan culture. Okay, starting from the introduction, during the Neolithic age, people had started leading a settled life. Large scale farming ensured surplus food. Domestication of animals provided early human beings with milk and meat, and thus reduced their dependence on hunting. This change in lifestyle led to the emergence of earliest village communities. Means as we already studied in the previous chapter, ठीक बेटा, जैसे कि हमने previous chapter में पढ़ा था कि न्यूलिथिक एज के दौरान people एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिए थे. ओके, और वे लोग बड़े पैमाने पर खेती भी करने लगे थे, जिससे उनके पास सरप्लस फूड अवेलेबल होता था. और सरप्लस फूड अवेलेबल होने के कारण, ठीक है, वे बाद में, ठीक है बेटा, हंटिंग कम करते थे. ठीक है, और वे जानवरों को पालने भी लगे थे. ठीक, जिससे अर्ली ह्यूमन बींग्स को उनसे मिल्क और मीट भी मिलता था. जिन जानवरों को वो पालते थे उनसे उन्हें मिल्क और मीट भी मिलता था. इसलिए वे तब शिकार पर बहुत ही कम डिपेंड रहते थे. ठीक है बेटा, और उनके लाइफस्टाइल में इस चेंज के कारण सबसे पहले गांव समुदाय का उदय हुआ. मींस अर्लीस्ट विलेज कम्युनिटीज का इमर्जेंस हुआ. ओके, people now had the time to do other things like pottery making, weaving, spinning and tools making. Means students, लोगों के पास अब काफी समय था कि वे other works भी करें, जैसे pottery making means बर्तन बनाना, weaving means बुनाई करना, spinning means कताई करना, और tools making means औजार बनाना. Okay, simultaneous discoveries of copper and bronze further added to the pace of human progress. This metal had an enormous impact on human society. This advanced technology encouraged a specialization in metal artifacts. Metal smelting and metal crafting necessitated long distance travel for search of raw materials. Sites such as Mehergarh show a clear transition from Neolithic agriculture society to the initial phase of अर्बनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, साथ ही कॉपर और ब्रॉन्ज की डिस्कवरीज ने आगे चलकर ह्यूमन प्रोग्रेस के पेस को, मींस ह्यूमन प्रोग्रेस के पाथ में और अधिक वृद्धि की. ओके बेटा, मींस इंप्रूवमेंट की. और इन मेटल्स का ह्यूमन सोसाइटी पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा. ठीक है, और यह एडवांस टेक्नोलॉजी ने मेटल आर्टिफैक्ट्स में स्पेशलाइजेशन को इनकरेज किया. मेटल स्मेल्टिंग और मेटल क्राफ्टिंग के लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स की खोज करनी पड़ी, जिससे उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़े. ओके स्टूडेंट्स, मेहरगढ़ जैसे साइट्स अर्बनाइजेशन मींस शहरीकरण के इनिशियल फेज में न्यूलिथिक एग्रीकल्चर सोसाइटी से एक क्लियर चेंज दिखता है. ओके, अर्बनाइजेशन रिलेट्स टू द इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. मींस अर्बनाइजेशन टाउन्स और सिटीज के आउटग्रोथ से रिलेटेड था. ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस फेज cities combined the functions of administrative centers, industrial centers as well as those of a trading hub. इस फेज के दौरान cities administration center, industrial center के साथ साथ एक trading hub के functions means कार्यों से भी जुड़ा. Okay, food production and metal technology introduced some complexities into the lifestyle of our ancestors. Who was to be in the charge of a new technology? Who was to be responsible for the food production? Most probably craftsmen started exchanging their products for food grown by the farmers. This saw development of trade. Okay, food production और metal technology ने हमारे ancestors के lifestyle में कुछ problems create की. Okay, means इनके वजह से हमारे ancestors के lifestyle में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आई. न्यू टेक्नोलॉजी के इंचार्ज कौन थे और फूड प्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार कौन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते थे. ओके, क्राफ्टमैन्स ने फार्मर्स द्वारा ग्रो किए गए फूड ग्रेन्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया. इससे ट्रेड का डेवलपमेंट होने लगा. मींस इससे व्यापार और डेवलपमेंट होने लगे. ओके, इवेंचुअली द ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन्स वर रिक्वायर्ड टू लिव क्लोज टू ईच अदर. The need to live together required early people to move into large, well-organized groups which formed
टाउन्स। आखिरकार ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन को एक दूसरे के करीब रहना आवश्यक था, मतलब चीजों को एक्सचेंज करने के लिए उन्हें एक दूसरे के निकट रहना पड़ता था। ओके, और एक साथ रहने की आवश्यकता के लिए अर्ली पीपल्स को एक अच्छे बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में जाने की आवश्यकता थी, जिसके कारण टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, these well organized groups usually had clearly defined boundaries and local administrative mechanisms. These groups were larger than villages and shared culture traditions such as language, arts and artifacts. Okay students, जैसे कि मैंने बताया कि एक साथ रहने की आवश्यकता के लिए अर्ली पीपल्स को एक अच्छे बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में जाने की आवश्यकता थी, जिसके कारण टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ। मींस मिलजुल कर रहने के लिए जरूरी था कि अर्ली पीपल को लार्ज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में शामिल किया जाए। ओके, जिससे टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आमतौर पर स्पष्ट रूप से सीमाओं और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को परिभाषित करते हैं। मींस ये ग्रुप्स गांव से बड़े थे और सांस्कृतिक परंपराओं को शेयर करते थे, जैसे कि लैंग्वेज, आर्ट और आर्किटेक्चर। ओके, दिस लेड टू द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। द बिगिनिंग ऑफ टाउन एंड सिटीज ड्वेलिंग इज रिगार्डेड एज द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ओके, और इसे टाउन्स और सिटीज का नेतृत्व हुआ और टाउन और सिटीज की शुरुआत को सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। ओके, द राइज ऑफ द ब्रॉन्ज एज was also marked by the rise of the four major civilizations which arose simultaneously on the banks of the rivers. These were the Indus Valley civilization on the banks of the river Indus, the Chinese civilization on the banks of the river Wango, the Egyptian civilization on the banks of the river Nile, and the Mesopotamian civilization on the banks of the river Tigris and Euphrates. Okay students, these were called the Bronze Age civilizations because of the extensive use of bronze in making tools, weapons and jewelry. Okay, means ब्रॉन्ज एज का उदय 4 मेजर सिविलाइजेशंस के उदय के रूप में मार्क किया जाता है, जो एक साथ नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी। और ये इस प्रकार हैं: इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर इंडस के तट पर उत्पन्न हुई थी, और चाइनीज सिविलाइजेशन जो रिवर वांगहो के तट पर उत्पन्न हुई थी, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो रिवर नाइल के तट पर उत्पन्न हुई थी, और रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के तट पर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराइज हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय लार्ज अमाउंट में टूल्स, वेपन्स और ज्वेलरी बनाने में ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, मींस जो आपका ब्रॉन्ज एज है, ठीक है बेटा, उसका जो उदय हुआ, ठीक है, वो 4 मेन मेजर सिविलाइजेशंस के उदय के रूप में मार्क किया जाता है। मींस जो एक साथ नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी, ये चारों सिविलाइजेशंस, ठीक है। पहला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन, थर्ड है हमारा द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और फोर्थ है हमारा द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर इंडस के बैंक पर अराइज हुआ था। जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो रिवर वांगहो के बैंक्स पे अराइज हुआ था। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के बैंक्स पे अराइज हुआ था, और जो हमारा द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो हमारे रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बैंक्स पर अराइज हुआ था। ओके, और इन्हें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय लार्ज अमाउंट में जो टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता था, वो ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। ओके, थैंक यू।